Hello students, welcome to your maths class. Today we will do question number 2 of exercise 5.1. Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. So here we are having first term A that is equal to 10 and D is equal to 10. So we have to write its first 4 terms. A, that means A1 is already given, first term is given to us. Now second term is that will be A plus D. द सेकेंड टर्म हमारे पास बनेगी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके. सो इट विल बी 10 + 10 दैट इज़ 20. देन A3 इट इज़ इक्वल टू A + 2D. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे D के कोफिशिएंट में 3 से 1 नंबर लेस हो जाएगा A + 2D. सो इट विल बी 10 + 2D मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस. सो 2 मल्टीप्लाई बाय D हमारे पास है 10. So it is 10 + 20 that is 30. Similarly A4 it will be A + 3D. So it is equal to 10 + 3 multiply common difference 3 × 10 that is 10 + 30 which is equal to 40. So first 4 terms of given AP are 10, 20, 30 and 40. So this is the required answer. Similarly in second part A is -2 and common difference is 0. So A means first term is given to us. A2 second term A plus D that is -2 plus common difference is 0. It is -2. Then A3 it is A plus 2D -2 plus 2 into 0 again -2. A4 which is A plus 3D then -2 plus 3 into 0 that is -2. So the first 4 terms are -2, -2 and -2. तो यहाँ पे सेम टर्म कॉमन हमारे पास ए पी की बन रही है. द रीज़न इज़ दैट हेयर द कॉमन डिफरेंस इज 0. मतलब कि नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम हर एक टर्म में 0 प्लस कर रहे हैं. सो दैट वाई ऑल द टर्म्स आर सेम. इन थर्ड पार्ट वी आर हैविंग ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू -3. नाउ हेयर द फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म A plus D. हेयर 4 प्लस कॉमन डिफरेंस -3 है तो 4 + -3 एंड प्लस माइनस विल मेक माइनस. सो 4 - 3 इज इक्वल टू 1. देन A3 इज A plus 2D. 4 + 2 into -3 that is 4 - 6. 2 into -3 that is -6. It will be -2. And A4 means A plus 3D. 4 + 3 into -3 that is 4 - 9 which is -5. So the required terms are in this AP 4, 1, -2. So in D part A is equal to -1, D is equal to half. The first term A1 is -1. To get second term A plus D. A हमारे पास -1 है, उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा है हाफ. We will add it. LCM will be 2. It is -2 + 1 -1/2. So second term is -1/2. Then third term is A plus 2D. That is -1 + 2 into 1/2. So it will be 1 -1 + 1 which is equal to 0. Then fourth term -1 + 3 times common difference which is half. That is -1 + 3/2. Again by using LCM -2 + 3 that is 1/2. So the required 4 terms of given AP are -1, -1/2, 0 and 1/2. So in fifth part A is -1.25 and D is -0.25. अब A1 हमारे पास है -1.25. So A2 is A plus D that is -1.25 plus the common difference is -0.25. So it is -1.25 -0.25 which is -0.50. So this is the second term. Then third term is A plus 2D. तो A हमारे पास है -1.25 plus 2D 2 multiply common difference 0.25. So we get -1.25 और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया we will get -0.50 and answer is -1.75. So to get third term, first term -1.25, कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 into -0.25. So we get -1.25. 3 के साथ मल्टीप्लाई किया it will be -0.75. So the answer is -2.00. Therefore the required 4 terms are first term -1.25, second term -0.50, then -1.75 and the last term is -2.00. So this is the final answer. Now third part is for the following APs write the first term and the common difference.
नीचे में ये ए पी दी गई हैं और हमने इनमें से फर्स्ट टर्म और इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के लिख रहे हैं। सो इन फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट टर्म इज़ 3, A1 इज़ 3 एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम क्या करेंगे, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4, तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3. So we will find 1 minus 3, it is minus 2. Then A3 minus A2, minus 1 minus 1, which is minus 2. माइनस 3 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3 माइनस 1, that is minus 3 plus 1, again minus 2. So the first term is 3 and the common difference is A1 is 3 and the common difference is minus 2. This is the answer. And second part same, minus 5, A1 is minus 5 and for common difference we will subtract A2 minus A1, minus 1 minus 5. So minus 1 plus 5, that is 4. Similarly we can find through A3 minus A2, 3 minus minus 1, that is 3 plus 1, which is 4. और A4 minus A3 में से अगर हम फाइंड करें 7 minus 3, that is equal to 4. So here first term is minus 5 and the common difference is 4. Similarly in third part, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1/3, A1 is 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस अगर हम A2 माइनस A1 करें, हमारे पास A2 which is 5/3 minus A1 1/3, so we will get 4/3. If we subtract A3 minus A2, 9/3 minus 5/3, that is 4/3, and last A4 minus A3, it will be 13/3 minus 9/3, that is 4/3. So here our first term is 1/3 and the common difference is 4/3. So last part here A1 0.6, then to find A2 we will subtract A2 minus A1, then A3 minus A2 and then A4 minus A3. So here is A2 1.7, A1 0.6, subtracting we will get 1.1. Next A3 2.8 minus A2 1.7, again it is equal to 1.1. Then A4, that is 3.9 minus A3, that is 2.8, it is again 1.1. So here first term is 0.6 and the common difference is 1.1. तो इन क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंस हर बार हमारा सेम आया, हम चाहे तो सिर्फ एक बार भी शो कर सकते हैं क्योंकि गिवन में हमारे पास है दीज आर द एपीज, तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स विल बी सेम, टू प्रीसीडिंग टर्म्स में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, इसलिए हर बार सेम आंसर आ रहा है. सो वी कैन ओनली शो द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP if they form an AP and find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन है कि नीचे हमें कुछ सीरीज़ दी गई हैं, उनमें से हमने APs आइडेंटिफाई करनी है. अगर AP सीरीज़ बन रही है तो हमने उनका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. अब नीचे जो सीरीज़ दी गई हैं ये AP हैं या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके कॉमन डिफरेंसेस चेक करने पड़ेंगे. इफ़ द डिफरेंसेस आर सेम देन दैट सीरीज़ विल बी एन AP, और अगर वो AP है तो जितनी टर्म्स हमें दी हैं उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने उसकी और फाइंड करनी है. लेट अस स्टार्ट. सो हियर इज़ द फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8, 16. तो यहाँ पे हमारे पास जो A1 है दैट इज़ 2. तो पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, दैट इज़ 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2. उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स का A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 8 माइनस 4, दैट इज़ 4. तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2 और 4 नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस है 4. सो हेयर कॉमन द डिफरेंस इज़ नॉट सेम, डिफरेंस इज़ नॉट सेम. तो अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है टर्म्स के बीच, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP.
तो अगर AP नहीं है तो इसकी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. सो इन सेकेंड पार्ट हियर द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो पहले A2 माइनस A1 करेंगे. A2 माइनस A1 दैट इज़ 5/2 minus 2. So here it comes 5 minus 4 1/2. Next two terms are A3 and A2. So A3 और A2 का डिफरेंस हम देख लेते हैं. 3 minus 5/2 that is 1/2. Again 1/2. अब नेक्स्ट 2 टर्म्स का भी देख लेते हैं हम. A4 माइनस A3 करके. So it is 7/2 minus 3. So we get 2, 7 minus 6 that is 1/2. So the common difference between the difference between these terms is the same. It means अगर common difference same है, अगर common difference इन सभी terms के बीच का same है, therefore this series is an AP. Therefore it forms an AP. तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर AP बन रही है we have to find the next 3 टर्म्स. अब हमारे पास जो टर्म्स दी हैं वो हैं A1 दी हुई है, A2 है, A3 है एंड A4 है. मतलब 4 टर्म्स दी हुई हैं. नेक्स्ट 3 मतलब वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3. 5th टर्म, देन 6th टर्म, देन 7th टर्म. हमने ये 3 टर्म्स फाइंड करनी है. तब हमारे पास ये AP है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 का है. एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास जो दी गई है दैट इज़ 2. सो नेक्स्ट 5th टर्म फाइंड करनी है. तो 5th टर्म हो गई हमारे पास A प्लस, यहाँ पे 5 है तो D के साथ कोफिशिएंट एक नंबर लेस लगेगा, A प्लस 4D. सो वी विल गेट A दैट इज़ 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D और D हमारे पास है हाफ. 4 मल्टीप्लाई हाफ इट इज़ 2 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 4. नेक्स्ट 6th टर्म. तो 6th टर्म निकाल रहे हैं तो D का कोफिशिएंट 5 होगा. यहाँ पे A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 1D विच इज़ 1/2. अब ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 5/2. सो 2 LCM 4 प्लस 5 इट इज़ 9/2. एंड लास्ट 7th टर्म हमने फाइंड करनी है. तो 7 टर्म है, इट मीन्स D के साथ 6 आएगा, 6D. A इज़ 2 प्लस 6 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 1/2. So here it comes 3. We get 2 plus 3 that is equal to 5. So the next 3 terms, these are 4, 9/2 and 5. And the common difference is 1/2. So this is the required answer. So next question, minus 1/2 minus 1.2 minus 3.2 minus 5.2 and minus 7.2. Here first term minus 1.2. Let us check the difference. तो डिफरेंस फर्स्ट टर्म पहली दोनों टर्म्स के बीच A2 माइनस A1 माइनस 3/2 प्लस माइनस 1.2. It is minus 3.2 plus 1.2. So we get minus 2.0, that is minus 2. Similarly, next difference is between A3 and A2. A3 minus A2. A3 is minus 5.2. उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने minus 3.2. So it minus 5.2. Minus and minus become plus 3.2. So it is also equal to minus 2. Then next A4 minus A3. So minus 7.2 minus 5.2. Then we get minus 7.2 plus 5.2, that is minus 2. So the difference between all these terms is same. So it means it is an AP. So therefore it is an AP with common difference minus 2. So we have to find the next 3 terms. 4 terms हमारे पास हैं. It means we have to find 5th term, 6th term and 7th term. A5, A6 and A7. So A5 is A plus 4D. A which is minus 1.2 plus 4 into minus 2. It is minus 1.2 minus 8 and we will get minus 9.2. A6 is A plus 5D. So A is minus 1.2
plus 5 into minus 2 common difference, minus 1.2 minus 10, that is minus 11.2. In the seventh term, a plus 6d, that is minus 1.2 plus 6 into minus 2, that is minus 1.2 minus 12, it is minus 13.2. Therefore the next three terms are minus 9.2, minus 1.2 and minus 13.2. Similarly in fifth part, the series given to us is minus 10, minus 6, minus 2 and 2. Here first term is minus 10. Now find the common difference, a2 minus a1. अब minus 6 में से minus 10 subtract किया, we will get 4. Then a3 minus a2. minus 2 में से minus 6 subtract किया, again we will get 4. And then minus difference between 2 and minus 2, that is 2 में से अगर minus 2 subtract किया, we get 4. It means the difference between all these terms is same. Therefore it is an AP with the common difference 4. तो अगर AP है, that means we have to find next three terms. तो fifth term a plus 4d, a is minus 10, 4 into common difference which is 4. 4 into 4, that is minus 10 plus 16, 6. Then a6 which is a plus 5d minus 10 plus this time common difference को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 into 4 20, तो 20 में से 10 माइनस किया हुआ 10. Then seventh term a plus 60 minus 10 plus 6 plus 6 for the 24, so we get 40. So next three terms are 6, 10 and 14. Now part 5, 3 plus under root 2, then 3 plus 2 under root 2, then 3 plus 3 under root 2. So here the first term is 3. Common difference we will find a2 minus a1. अब अगर हम 3 plus under root 2 में से 3 minus किया, 3 will cancel, we get common difference as under root 2. Next a3 minus a2. अब a3 हमारे पास है 3 plus 2 under root 2. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 plus under root 2. अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 3 भी नेगेटिव बनेगा तो माइनस अंडर रूट 2. तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 के आगे कोई नंबर नहीं, दैट मीन यहाँ पे 1 है, 3 एंड 3 विल कैंसिल. अब 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस हुआ, इट लेफ्ट अंडर रूट 2. सिमिलरली a4 में से a3 माइनस किया, a4 है हमारे पास 3 plus 3 अंडर रूट 2. अब इसमें से जब हम a3 माइनस करेंगे इसके साइन चेंज होंगे, 3 विल बी नेगेटिव एंड 2 अंडर 2 विल आल्सो नेगेटिव. सो वी हेयर 3 एंड 3 विल कैंसिल. नाउ 3 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 2 विल अंडर 2. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा तीनों टर्म्स के बीच का सेम है. इट मीन्स इट इज़ एन AP विद d इज इक्वल टू अंडर रूट 2. तो अगर डिफरेंस अंडर 2 है, अब हमारे पास हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है. a5 ये हो जाएगा a plus 4d. a इज़ 3, 4 इंटू अंडर रूट 2, दैट मीन्स 3 plus 4 अंडर रूट 2. a6 हमारे पास हो जाएगा a plus 5d, तो इट इज़ 3 plus 5 अंडर रूट 2. एंड देन a7 विल बी a plus 6d, and we get here 3 plus 6 under root 2. So these three terms are the answer. Now in sixth part is the terms are 0.2, 0.22, 0.222 and 0.4 times 2. अब फर्स्ट टर्म है 0.2. अब कॉमन डिफरेंस फाइंड किया हमने, a2 में से a1 माइनस किया, 0.22 में से 0.2 माइनस किया, we will get 0.02. अब a3 में से a2 माइनस किया, मतलब 0.222 में से 0.22 हमने माइनस किया, we will get 0.002. कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, पहले दोनों टर्म्स के बीच 0.02 का, नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस है 0.02. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस चेंज है. a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP. तो अगर ये AP नहीं है, नेक्स्ट हम इसमें हम फाइंड नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 0, -4, -8 एंड -12. फर्स्ट टर्म है 0, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, -4 में से 0 माइनस किया, -4. फिर -8 में से -4 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन -4. फिर a4 माइनस a3, -12 में से -8 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट -4. अब डिफरेंस सेम है अमंग ऑल दीज टर्म्स, देयरफॉर इट इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस 4. सो वी नीड टू फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आल्सो. तो अब a5 हम फाइंड करेंगे. a5 है a plus 4d इज इक्वल टू a हमारे पास है 0 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, दैट इज -16. a6 हो गया a plus 5d. अब ये 0 है, अब 5d, 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -20. देन a7d, 0 plus 7 इंटू -4, वी विल गेट 7 for the -28, 0 -28 minus, sorry, a
6d आना चाहिए यहाँ पे, 6 इंटू -4, सो -24 इस तरह से। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमारे पास AP की बन गई, -16, -20 एंड -24। सो एट्थ पार्ट, द सीरीज इज -हाफ, -हाफ, -हाफ एंड -हाफ। फर्स्ट टर्म -हाफ। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें, सेम टर्म्स हैं तो जब सेम टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो कॉमन डिफरेंस 0 होता है। A2 में से A1 माइनस किया, -हाफ में से -हाफ को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड बोथ विल कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसी तरह A3 और A2 का डिफरेंस, वो भी सेम टर्म्स है, वो भी 0 आएगा, A4 माइनस A3 का। तो अब कॉमन डिफरेंस सेम, जो डिफरेंस है अमंग द टर्म्स इज सेम, इट मीन्स इट इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस 0। तो अगर 0 कॉमन डिफरेंस है, सभी टर्म्स सेम है, तो इट मीन नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी एक जैसे होंगे। सो A5 विल बी -हाफ, A6 विल बी -हाफ एंड A7 विल आल्सो -हाफ। नाउ पार्ट 9, टर्म्स गिवन आर 1, 3, 9 एंड 27। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2। उसके बाद A3 माइनस A2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 6। द डिफरेंसेस आर चेंजिंग हेयर, A2 माइनस A1 जो पहली दोनों टर्म्स का डिफरेंस है, एंड A3 माइनस A2 जो नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस, दीज आर नॉट सेम, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। Then next 10th part, the terms are A, 2A, 3A and 4A. Here the first term is A. Let us find the common difference. अब A2 में से A1 माइनस किया, 2A में से A माइनस किया, here left A. Next A3 माइनस A2, 3A में से 2A माइनस किया, again we get A. और A4 माइनस A3, 4A में से 3A सब्ट्रैक्ट किया, again we get A. So all the time we get the difference A. It means this series is an AP with common difference A. Now next three terms are then A5, A plus 4D। अब A plus फर्स्ट टर्म हमारे पास A ही है, ठीक है, प्लस 4D, 4 इंटू कॉमन डिफरेंस इज आल्सो A, 4 इंटू A, सो A plus 4A इज़ 5A। अगेन A6, फर्स्ट टर्म A प्लस 5D। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास A ही है, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस, 5 इंटू A 5A, वी गेट 6A। एंड सिमिलरली सेवन्थ टर्म इज A plus 60, A plus 6 into A, that means 7A. It means next three terms are 5A, 6A and 7A. Now 11th part, the terms are A square, A cube, A4. Here first term is A. Let us find the common difference. अगर हम A2 में से A1 माइनस करें means A square minus A, तो ये A कॉमन आ जाएगा, we left with यहाँ पे A रह गया, यहाँ पे रह गया 1। सिमिलरली A3 में से A2 माइनस किया, A क्यूब माइनस A स्केयर। अब इन दोनों में से A स्केयर कॉमन आएगा, हेयर लेफ्ट A माइनस। दैट मीन्स कि जब कॉमन फैक्टर्स निकालें, एक फैक्टर हर बार सेम बन रहा है, बट जो बाहर फैक्टर कॉमन निकाला है वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स जो डिफरेंस है इनके बीच का, फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच और नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच, वो सेम नहीं है। सो हेयर द डिफरेंस ऑफ A2 एंड A1 इज़ नॉट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ A3 एंड A2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। Now 12th part, terms are √2, √8, √18 and then 32। तो पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करके अगर रूट जितना पॉसिबल रूट होता है वो निकाल लेते हैं। अब 8 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं 2 इंटू 3 इंटू 3। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, 2 पे किया 9, देन 3, देन 3। तो वही फैक्टर्स हमने रूट के अंदर लेने हैं। और इसी तरह 32 के हम अगर फैक्टर्स बनाएं 5 टाइम 2। तो अब यहाँ से हम रूट्स निकालते हैं। इट इज़ √2, यहाँ से 2 √2, 3 का पेयर है, इट मीन्स 3 इंटू 3, ये रूट निकल आएगा 3 √2, और यहाँ पे 2 इंटू 2 और एक √2। सो वी गेट √2, then 2 √2, then 3 √2 and then 4 √2 एज आर सीरीज़। मतलब जो हमारे पास सीरीज़ है वो एग्जैक्टली ये बनी हुई है। तो अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है √2, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना है। फर्स्ट A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 √2 में से हमने √2 सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे आगे नंबर 1 है, 2 - 1 is 1, दैट इज़ ओनली √2 लेफ्ट। A3 माइनस A2, 3 √2 में से 2 √2 माइनस किया, सो
वी गेट अगेन √2, 3 - 2 1 हो जाएगा. सो सिमिलरली A4 माइनस A3, 4 √2 में से 3 √2 माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया 1, सो हियर लेफ्ट ओनली 1 √2. The difference is same among all these terms, √2, so it means it is an AP, therefore it is an AP with common difference √2. तो अब अगर कॉमन डिफरेंस √2 है, AP है, तो वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो वी फाइंड A5, इट इज़ A + 4D, A √2 है प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, वो भी 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 4 √2, तो ये आ गया 4 √2 प्लस 1 √2, 4 + 1 5, 5 √2. सिमिलरली A6, A + 5D, तो A हमारे पास है √2, इसका कोफिशिएंट 1 ले लेते हैं, और 5 को कॉमन डिफरेंस √2 से मल्टीप्लाई किया, 5 √2, और 5 + 1 वी गेट 6 √2. सिमिलरली A7, इट इज़ A + 6D, अब A हमारे पास है 1 √2, अब 6 को मल्टीप्लाई किया √2 के साथ 6 √2, तो 6 + 1 हो गया 7 √2. सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर 5 √2, 6 √2 एंड 7 √2. सो 13th पार्ट इज √3, √6, √9 एंड √12. √3 6 का रूट नहीं निकल सकता, सो इट विल रिमेन √6. 9 का रूट हो गया 3, और 12 के फैक्टर्स 4 × 3, जिसमें से 4 का रूट आ जाएगा 2, एंड हेयर लेफ्ट ओनली √3. तो हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गई. फर्स्ट टर्म √3 है. अब कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, A2 - A1 किया, √6 - √3, इसे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते. देन A3 - A2, A3 - A2 में हमने 3 में से √6 माइनस किया, इसे भी फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता. नो बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि दोनों डिफरेंसेस डिफरेंट आ रहे हैं, इट मीन दिस इज़ नॉट एन AP. सो 14th पार्ट, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर. पहले इनके स्क्वायर्स को हम खोल लेंगे. 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 3 × 3 = 9, 5 स्क्वायर विल बी 25 एंड 7 स्क्वायर विल बी 49. नाउ वी आर हैविंग फर्स्ट टर्म हियर A, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं. सी कॉमन डिफरेंस A2 और A1, 9 - 1 इट इज़ 8, बट कॉमन डिफरेंस बिटवीन 25 एंड 9 इट इज़ 16. सी द कॉमन डिफरेंस आर चेंजिंग. डिफरेंस फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 8 है, नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस इज 16. इट मीन ये कंटिन्यू पैटर्न नहीं बन रहा. सो हेयर A2 - A1 एंड A3 - A2 आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नॉट एन AP. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट. फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73. पहले इनके स्क्वायर्स को हम खोलेंगे. 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49. फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, कॉमन डिफरेंस 25 में से 1 माइनस किया 24. देन A3 - A2, 49 में से 25 माइनस किया 24. देन A4 - A3, 73 में से 49 माइनस किया 24. Now both the terms are having same difference. All these terms are having same difference. It means it is an AP with common difference 24. तो next 3 terms A5, A6 and A7. Let us see. अब A5 हो गया A + 4D. A हमारे पास है यहाँ पे 1. So A is 1. अब 4 को मल्टीप्लाई किया कॉमन डिफरेंस 24 के साथ. 4 × 24 इट इज़ 96. तो 96 + 1 हो गया 97. सिमिलरली A6 A + 5D, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर इज़ 120 + 1, दैट इज़ 121. और A7 A + 60, A is 1, 6 into common difference 24. So 1 + 1 44, it is 145. So next 3 terms of the AP are 97, 121 and 145. So here exercise 5.1 is finished. In case of any doubt or any query related to this exercise, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.